चलें अरूज आ जाए। चलें, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर इन योर पेशेंट? Risk factor in my patient is recurrent miscarriage history, history of preeclampsia, history of preterm delivery, lower segment cesarean section, and APLS. सबसे पहले आप बोलेंगी नोन केस ऑफ एपीएलएस। हाँ जी। तो पहला रिस्क फैक्टर आपके पेशेंट का जो है, शी इज अ नोन केस ऑफ एपीएलएस। ठीक है, उसके बाद के बाकी आएंगे। ठीक है, जी ठीक। तो सबसे पहले आपने ये बोलना है। ठीक है, ओके। हाँ जी। हाउ व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू विल परफॉर्म इन योर पेशेंट? Baseline investigation and specific. For baseline investigation, I need her blood group with rhesus factor, बी पॉजिटिव। full blood count by date for hemoglobin, platelet count, and total leukocyte count. Hemoglobin is 10 gram per deciliter. Total leukocyte count is 7,000 and platelet is 160,000. Okay. And her fasting blood sugar level and 1 hour postprandial. Normal. Her hepatitis B surface antigen, anti-HCV antibody, and HIV antibodies. Negative. Her urine complete examination for pus, proteins, albumins, That is nitrates. also normal. Okay. And her dating scan to It know is gestational age a and cardiac single activity. alive pregnancy of 9 weeks. Fetal cardiac activity is present. Okay. And her reports of anti-phospholipid antibodies. I want to And see anti-cardiolipin antibodies present. and any anti-Rho, anti-La antibodies. Anti-Rho, anti-LAR antibodies are negative. Okay. Her PT-APTT. Not done. Why you want PTA-PTT? As her platelet is in the lower range. Platelet is normal. 150,000 तक is normal. अच्छा 150. ओके ओके। 160 150। है उसके, तो 150 तक इज नॉर्मल। ठीक व्हाई है यू मैडम, फिर वांट नहीं चाहिए। हाँ जी, पीटीएपीटीटी? मुझे लगा 50 बोला। ठीक है। 150 भी है तो वो नॉर्मल है ना। जी। ओके, ओके। एंड मैनेज हर योर केस, मैनेज योर केस नाउ। previous reports, her previous record of delivery as well, ओके, आई विल प्रोवाइड if यू और available. मैनेज योर केस। Okay. Uh, first of all, uh, first of all, I will counsel the patient regarding her diagnosis of known case of antiphospholipid syndrome, and I will show empathy towards my patient, and I will tell my patient that this is a high risk pregnancy due to multiple risk factors, and it has many fetal-maternal risks, which include increased risk of preterm delivery and increased risk of pregnancy-induced hypertension or preeclampsia, and for the mother, increased risk of eclampsia and need for hospitalization and multiple injection use of multiple injections and need for the operative delivery. I will admit my patient, and I will do fetal-maternal surveillance, and I will start Loperin tablet Loperin 150 milligram, and I will start injection heparin subcut according to weight of patient 40 milligram once a day, and I will teach my patient how to inject it, and I will continue fetal-maternal monitoring after teaching, and after completing labs, I will discharge my patient with red flag signs and keep my patient on follow-up. After every 3 to 4 weeks, I will do growth scans for the baby to rule out any intrauterine growth restriction. At 20 weeks, I will also do her anomaly scan of the baby, and I will encourage.
tonics to my patient, and I will do baseline Doppler ultrasound of baby as well. And at each visit, I will do monitor blood pressure of my patient as well as her proteins कौन सा for डॉपलर आप proteins. करवाएंगी और कितने वीक्स पे I करवाएंगी will डॉपलर? at the time of anomaly scan, I will do her uterine artery Doppler ultrasound फॉर व्हाट? to see for any notch. And notching shows what? For And which? What is the risk in notching? to rule out intrauterine growth restriction for later development of intrauterine growth restriction. नॉचिंग इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को शो करता है या किसी और चीज को? Preeclampsia. यस, आई विल डू यूट्राइन आर्टरी डॉपलर एट 20 Preeclampsia. वीक्स फॉर द नॉचिंग टू रूल आउट द रिस्क ऑफ प्रीक्लेम्शिया। जी. So जुमला to rule ऐसे out the आपने risk of बोलना है, preeclampsia. जुमला आपने ऐसे बोलना है, ठीक है? ओके, ठीक है. आगे। ठीक है. Then और I फिर will ग्रोथ के लिए continue आईयूजीआर के लिए किस चीज का डॉपलर करेंगी? umbilical artery Doppler. हाँ, तो इट इज नॉट ओनली द वर्ड डॉपलर अल्ट्रासाउंड, यू हैव टू मेंशन कि विच डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है? ठीक. सपोज नहीं कर लेना कि अगले को पता है कि यू हैव टू डू यूट्राइन आर्टरी डॉपलर फॉर नॉचिंग टू रूल आउट द रिस्क ऑफ प्रीक्लेम्शिया, and for the growth you will go जी. for the umbilical artery doppler. Initially you will perform जी. growth scan. If there any discordant or there is evidence of growth restriction, then you will perform the umbilical artery doppler, ठीक है? Okay. इसका रूल जी. ये होता है, अगर I will. अल्ट्रासाउंड ग्रोथ स्कैन नॉर्मल आ रही है, you don't go for the umbilical artery doppler. If there is any discordant in the, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, जी, मैडम अगर इवन अगर ग्रोथ स्कैन हमने किया और वो नॉर्मल आ रहा है लेकिन पेशेंट की हिस्ट्री सजेस्टेड है, उसको रिकरेंट हुए हैं, उसको प्रीक्लैम्सिया हुआ है, तो उस बेस पे हम रिस्क फैक्टर्स की बेस पे उसको 26 वीक्स पे अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर ऑफर नहीं करेंगे एक दफा कि वो हम उसको करें, उसमें और अगर आपने फिर वो 20 नॉर्मल। जिसके अंदर आईयूजीआर का रिस्क है ना, उसके अंदर आपने ग्रोथ स्कैन ऑफर करने हैं, ठीक है? ओके, और ग्रोथ मतलब स्कैन में प्रोफाइलेक्टिकली अगर, भी। हाँ जी, प्रोफाइलेक्टिकली कोई नहीं होता, हमने मॉनिटरिंग करनी है। आप अगर आईयूजीआर की गाइडलाइन खोले ना, तो उसके जो ओके। आखिरी चार्ट्स हैं, हम्म। उसके अंदर एक चार्ट आपका मॉनिटरिंग का है, मैं भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? वो दो चार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है उसमें, कब आपने डिले, एक चार्ट है मैनेजमेंट का, एक है आपका रिस्क का, ठीक है? मैं भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ, और ये चीज मैं आपको यहीं पे क्लियर करती हूँ। डॉक्टर रूज, मैं चाहती हूँ आप पहले इसको कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको ये ठीक. बात पॉइंट डिस्कस करती हूँ आपसे, ठीक है? आगे आपने उसका ग्रोथ स्कैन्स कर लिए, फिर आप At, कहाँ तक लेके then at जाएंगे चीजें? 34 weeks. At 34 weeks, I will plan mode of delivery and time of delivery and counsel regarding contraception and breastfeeding. My plan of 34 पे कि delivery is 36 by पे? the abdominal route. 34 पे कि 36 पे? मैडम जिसमें दो तीन रिस्क फैक्टर हो तो फिर हम 34 पे ही नहीं स्टार्ट कर देते इसका प्लान करना. नहीं, अगर सब कुछ ठीक जा रहा है, रिस्क फैक्टर्स हैं, 36 भी आपकी कहना. पेशेंट ठीक जा रही है, आपने इतना अच्छा उसको एंटीनेटल केयर दी कि ना तो उसने क्लिम्शिया डेवलप किया ना पीआईएच डेवलप किया, आपने हर चीज को साथ साथ जी. मॉनिटर करती नहीं, तो वाई टू डिलीवर अर्ली, ठीक. ठीक है? Then at 36 weeks, I will plan mode of delivery and हम्म। time of delivery and counsel regarding contraception and breastfeeding. And Suppose I your will patient plan her developed PIH and she is taking labetalol 100 milligram TDS and her blood pressure is control. What will the mode and time of delivery? I will deliver my patient by abdominal route and at 37 weeks of pregnancy after giving steroids for the fetal lung maturity Good. and after taking the अब informed स्टीरॉइड्स parents' हम consent 37 वीक्स पे and the नहीं देते, consultant read. 37 वीक्स पे नहीं अब स्टीरॉइड देते, पहले देते थे, ठीक है? अब 37 वीक्स पे ठीक है. अगर चली गई है पेशेंट तो फिर नहीं देना। यस, पीआईएच है, थोड़ा कंट्रोल भी है, और कोई उसको और रिस्क फैक्टर नहीं है, तो ये पेशेंट 38 to 39 पे चला जाता है, ठीक है?
37 पे आपने इसको डिलीवर कर देना है, ठीक है। और वी बैक इज चॉइस, तो वो आपकी चॉइस है कि आप वी बैक उसको करवाना चाहती हैं या नहीं करवाना चाहिए। आइडली इलेक्टिव सिजेरियन 37 वीक्स पे चला जाए, जिसमें पेशेंट को पीआईएच भी है, एप्ला भी है, तो फिर करें। और इसकी लो मॉलिक्यूलर वेट Okay. हेपरिन के बारे में क्या, कब तक No, चलेगी? continue. Continue. कब Till तक? the टिल टिल डिलीवरी जाएगी ना इसकी, ठीक है। और जो एंटीनेटल में ले रही and I होगी, will my पोस्ट blood नेटल कब pressure. जाएगी? जी मैडम. आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन कब तक जाएगी उसको? Till डिलीवरी तक. हाँ, और पोस्टमार्टम में कब तक जाएगी? पोस्टमार्टम 6 वीक. हाँ, गुड, वेरी गुड, ठीक है। और सिक्स एंड वीक व्हेन विल यू पोस्टमार्टम. स्टॉप द लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन फॉर इलेक्टिव सिजेरियन? एंड यू हैव डिसाइडेड द स्पाइनल। हम्म, अरूज, क्वेश्चन समझ आया मेरा? हेलो. फातिमा, नहीं, अब टिल डिलीवरी है। ये नई वाली जो आज मैंने शेयर की है उसमें देखें, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अरूज, मेरा सवाल ये था कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आपने इलेक्टिव सिजेरियन, यू आर गोइंग टू परफॉर्म इलेक्टिव सिजेरियन, सो 1 डे बिफोर हम नहीं देंगे. 1 डे बिफोर वाली डोज स्किप कर आर्स देंगे. आर्स आर्स बताइए, कितने आवर्स बिफोर? ट्वेल्व एपिड्यूरल आवर्स बिफोर. रिस्पाइरेशन योर पेशेंट इज टेकिंग प्रोफाइलेक्टिक डोज, so how many hours यस before 12 आवर्स. the regional anesthesia you will stop the low molecular weight heparin? 12 आवर्स बिफोर. 12 hours before. And जी. after spinal, how many hours you will take to repeat the dose? 6 to 12 आवर्स. हाँ, 12 hours ही ना। रीजनल हाँ जी. एनेस्थीसिया और रिमूवल की बात है ना, वो तो अगर आपका हम्म, एपिड्यूरल है तो आपने 12 hours पे करना है। अदरवाइज आप 4 to 6 hours के बाद लो डोज हेपरिन दे सकते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन जी. अगर आपका एपिड्यूरल है तो फिर आपने रिमूवल ऑफ एपिड्यूरल के 12 घंटे बाद देनी है, ठीक है। हम्म, ठीक. स्पाइनल में आप 4 to 6 hours पे दे सकते हैं, ठीक है, जी. क्योंकि ये पेशेंट रिस्क ऑफ, देन ड्यूरिंग. ठीक है। देन हाँ. जी. ओके, ओके, विच लार्क यू विल, ओ सॉरी, विच कॉन्ट्रासेप्शन यू विल एडवाइज टू दिस पेशेंट? कौन सा सेक्शन? According to patient choice, but avoiding combined oral contraceptive pills, ओरल and I will कॉन्ट्रासेप्शन अवॉइड give करनी है। choice of long, हाँ, हाँ लार्क जी, उसको एडवाइस कीजिए ना। रिकरेंट मिसकैरेजेस long हैं, acting anticonceptive. हेल्थ इश्यूज हैं, 2 बच्चे अब उसके हो गए वे, एप्ला उसको ऑलरेडी है, तो कब पर आईयूसीडी आप उसको एडवाइस करेंगे? मैं आपको समरी शेयर कर देती हूँ कॉन्ट्रासेप्शन वाली, एक वो बहुत अच्छी है, उसको प्रिंट करके आप अपने पास रख लें, और उसमें कैटेगरी 1 2 3 सब डिजीजेस की ना लिखी हुई है, कॉन्ट्रासेप्शन कौन सी करनी है, उनके प्रिंट्स आप निकाल के रख लीजिए, ताकि जब भी कोई डिजीज आप पढ़ें जी. उन प्रिंट्स को देखें और खोल के देख लें कि किसकी कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन है, ठीक है। मैं भी आपको सेंड कर देती हूँ। हम्म, अच्छा, मैं अब आपको ना शेयर कर रही हूँ ये आईयूजीआर का चार्ट। ये जब मैं आईयूजीआर भी आपको करवाऊंगी उसमें भी हम कर लेंगे, लेकिन आज भी थोड़ा इसको क्लियर कर लें। स्क्रीन नजर आ रही है? हम्म, देखिए, ये रिस्क असेसमेंट है, आपका हाई जी. रिस्क का पेशेंट कौन सा है जिसको मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। मैं और इसको क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने ये जितने आपके हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, ठीक है, इनको आप देखें, उसमें एपीएलएस आ गया, ठीक है, ये वाला एपीएलएस, ठीक है। इसमें आपने एक कराया यूट्राइन आर्टरी, ठीक है। आपने इनमें यूट्राइन आर्टरी कराना है, और यूट्राइन आर्टरी डॉपलर पे कैसा आता है,
और उसके साथ आपने ये एस्टिमेटेड फीटल वेट देखना है, यानी ग्रोथ देखना है। ठीक है, अगर सब कुछ नॉर्मल आया हुआ है तो आप उसका सीरियल अल्ट्रासाउंड फ्रॉम 32 वीक्स करा दें। यहाँ पे कहीं पे भी डॉपलर नहीं है। डॉक्टर आसिया नजर आ रहा है आपको? आई थिंक डॉक्टर आसिया नहीं है। ठीक है, देखें ये सीरियल अल्ट्रासोनोग्राफी, यहाँ पे अभी तक कहीं पे भी आपका अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर नहीं आ रहा। ठीक है, वंस यू डायग्नोज्ड IUGR, ये देखें अब ये है मैनेजमेंट ऑफ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। अब वो आपका अर्ली IUGR है, यानी 32 वीक से पहले आ रहा है, तो उसमें आपने एस्टिमेटेड फीटल वेट कराना है फोर्टनाइटली, हर 15 दिन के बाद। और अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर यहाँ पे आपने वीकली कराना है। सो ये थोड़ा सा दो चार्ट्स के अंदर डिफरेंस है। आपने अगर मॉनिटरिंग करनी है रिस्क फैक्टर्स की बेस पे, तो हाई रिस्क पेशेंट का आपने यूट्राइन आर्टरी डॉपलर कराना है, और उसके मुताबिक और अल्ट्रा सीरियल अल्ट्रासाउंड उसके मुताबिक डिसाइड होंगे। और अगर सीरियल अल्ट्रासाउंड के ऊपर डायग्नोज हो जाता है कि इसको फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो रही है, तो फिर आप अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर वीकली अकॉर्डिंगली करवाएंगे। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, वो चाहे अर्ली हो चाहे वो लेट हो, ये सारे आप नीले वाले देखे ना, ये जो मोटे नीले शुरू में लिखे अर्ली FGR, इसमें क्या लिखा हुआ है? एस्टिमेटेड फीटल वेट फोर्टनाइटली, अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर वीकली। नीचे आ जाए 32 वीक से 36 वीक्स पे, आपने क्या करना है? एस्टिमेटेड फीटल वेट फोर्टनाइटली, अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर वीकली। 37 टर्म पे आ गया ऑनवर्ड, तो एस्टिमेटेड फोर्टनाइटली, अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर वीकली। यानी इसका एक जर्नल आप बात कर लें कि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन अगर आपकी हो गई है, तो आपने एस्टिमेटेड फीटल वेट फोर्टनाइटली, जिसको आप फीटल बायोमेट्री करते कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप एस्टिमेटेड फीटल वेट कब आता है? जब आप BPD लेते हैं, फीमर लेंथ लेते हैं और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस लेते हैं। जब ये तीनों चीजें आप लेते हैं तो आपको एस्टिमेटेड फीटल वेट मिल जाता है। ठीक है, तो आप जब आपका रिस्क फैक्टर्स हैं तब आपने सीरियल अल्ट्रासाउंड्स कराने हैं, और अगर हाई रिस्क है तो उसका यूट्राइन आर्टरी डॉपलर कराना है। ठीक है, और यूट्राइन आर्टरी डॉपलर के ऊपर और एस्टिमेटेड फीटल वेट, यानी फीटल बायोमेट्री, जिसमें तीन चीजें आपकी आती हैं, BPD, फीमर लेंथ, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, ये तीन चीजों की बेस पे फिर आपने आगे चलना है। और वंस आपका फीटल बायोमेट्री पे, एस्टिमेटेड फीटल वेट पे डायग्नोज्ड हो गया कि FGR है, तो फिर ये चार्ट चलेगा आपका। और उसमें किसी भी लेवल का FGR है, चाहे वो अर्ली है, वो लेट है, वो टर्म पे है, आपने उसका एस्टिमेटेड फीटल वेट फोर्टनाइटली करना है, और अम्बिलाइकल आर्टरी डॉपलर जो है वो आपने वीकली करना है। ठीक है, ये समझ आ गया? अच्छा, अब आपका रिकरेंट का मैं दिखा दूं जो क्वेश्चन ये आप पूछे थे, कि देखिए एस्पिरिन एंड हेपरिन लो मॉलिक्यूलर शुड बी इफेक्टिव ऑफर टू द वुमेन 40 mg subcutaneously at least 34 weeks. Clinician and women should be aware that the treatment with heparin, particularly unfractionated heparin, is not without any risk. ठीक है, अब हम जो ये आगे दे रहे हैं ना, ये हम जो एक तो ये रिकरेंट वाली है ना, और इस पेशेंट को आपने टिल डिलीवरी क्यों देना है फातिमा? क्योंकि इस ये रिस्क फैक्टर है फॉर थ्रम्बो यस मैडम। एम्बोलिज्म। ठीक है, तो जो जी मैडम। अगर जी सिर्फ मैडम। आपने रिकरेंट मिस कैरेज में देना है ना, वो आप 34 वीक्स वाले बात कर सकती हैं। ठीक है, जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन और एस्पिरिन अगर रिकरेंट की वजह से दे रहे हैं, लेकिन हमने इसका जो जी टिल मैडम। डिलीवरी 36 वीक्स वाला चलाना है, वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की जो गाइडलाइन है ना, उसके मुताबिक हम दे रहे हैं। उसी के मुताबिक हम इसको जी 6 वीक्स मैडम। पोस्टमार्टम भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें इस जी। केस के अंदर जी मिक्स हो गई हैं। जी मैडम, मेरे माइंड में भी यही चीज थी कि अगर थ्रोम्बो रेफ्लेक्सिस हम देते हैं तब हम टिल डिलीवरी हाँ तक देते हैं और बाद हाँ, में भी देते हैं। तो इस हाँ केस के जी अंदर मैडम। टिल डिलीवरी, ये इसीलिए मैंने सवाल उनसे पूछा था, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि यार रिकरेंट वाला केस है तो 34 पे देना है, लेकिन आप ये भी तो देखें उसको एप्ला है, तो हमने वो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म वाली गाइडलाइन को भी देखना है यहाँ पे। तो दो चीजें यस मैडम। इसमें मर्ज होके हमने डिसीजन लेना है इस पेशेंट के लिए। ठीक। हाँ, अगर ये एप्ला ना होता, अनएक्सप्लेन्ड रिकरेंट मिसकैरेजेस होते,
तो फिर आप उसमें कर सकती थी कि मैं 34 तक दूंगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर मैडम। बोला था एप्ला में जो है वो थेरेपेटिक डोज नहीं देंगे? नहीं नहीं, थेराप्यूटिक नहीं होगी। एपीएलएस के अंदर प्रोफाइलैक्टिक। प्रोफिलैक्टिक डोज ही चलती है। ओके। वो हाई रिस्क कुछ होते हैं, जिसको डीवीटी हो चुका हो या जिसको हो चुका हो, उनको हाई प्रोफाइलेक्टिक डोज जाती है। वो इंडिकेशन उसमें आएंगी, लिखी हुई है इंडिकेशन गाइडलाइन में, कि हाई प्रोफाइलेक्टिक डोज किनको देनी है, और लो सिंपल प्रोफाइलेक्टिक डोज किसको देनी है, और थेराप्यूटिक डोज किसको देनी है। वो इंडिकेशंस अलग अलग आपकी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की गाइडलाइन में अलग से दी भी हुई हैं, ठीक है। एप्ला इज नॉट कि आप उसको हाई डोज दें। हाँ, अगर एप्ला के साथ बीटीई का हो चुका होता है एक एपिसोड, फिर आप उसको हाई डोज प्रोफाइलैक्सिस में जाते हैं, ठीक है। जी अरूज, आपको मैनेजमेंट समझ आई है अपने पेशेंट की? जी मैडम। हाँ। अब जी। अल्फाज आपके बहुत अच्छे हैं, वो काफी प्रैक्टिस आपकी हो रही है, इंशाल्लाह ये और बेहतर हो जाएगी। लेकिन वेरी क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जुमला आपका वेरी क्रिस्प एंड वेरी क्लियर, यू शुड नो कि आप क्या कह रही हैं, और उसमें क्या मैनेज करना चाह रही हैं और क्या बताना चाह रही हैं। और आप ये बता दीजिए कि इफ शी डेवलप हाइपरटेंशन, तो आप क्या देंगी, ठीक है। ब्राय इसके कि वो आप ठीक। पहले तो आप एक बता देना क्वेश्चन, जैसे अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अच्छा उसको एक्लेम्शिया डेवलप होता है, ये होता है, तो वो आप क्या करेंगी। एक चीज जो आप इसमें मिस की आपने, आपने टॉनिक्स की तो बात की, लेकिन उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HB10 था, हम्म। ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाँ कितना जी। होना चाहिए HB? फर्स्ट में नाइन 11, 11 पर। 11 11। तो हम्म। इसका वर्कअप ऑफ एनीमिया जरूर करें, ठीक है। वो मुझे शुक्र है ठीक याद है। आ गया, क्योंकि आप बीच में वो भूल गई थी। टॉनिक्स आपने दे दिए, बट आपने देखना है कि एज हर हेमोग्लोबिन इज 10 ग्राम पर डेसीलीटर, विच इज अकॉर्डिंग हम्म। टू नाइस एंड SOGP शुड बी 11 इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो वी शुड हम्म। गिव हर ओरल हिमाटेनिक्स टू बिल्ड अप हर HP, ठीक है। ये एक जुमला ही बस ठीक है। आपने बोलना है, और फिर आपने 28 वीक्स पे उसकी एक CBC रिपीट भी करना है, और मंथली आपने उसका ब्लड प्रेशर वीक चेकअप करना है, और उसको ब्लड प्रेशर देखना है, उसका उसका प्रोटीन यूरिया को देख लेना है, ठीक है। हम्म। अगर वो ब्लड प्रेशर डेवलप करती है, तो फिर उसके मुताबिक आप चलेंगे। प्रीवियस IUGR है, APLS है, हाई रिस्क है, तो आप इसका सीरियल अल्ट्रा यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करवाएंगी, और उसके मुताबिक आप सीरियल अल्ट्रासाउंड करती जाएंगी। अदरवाइज आफ्टर 24 वीक्स आप उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करेंगी बाय सिम्फिजियो फंडल हाइट, ठीक है। ठीक। अमाउंट ऑफ लाइकर को देखेंगी। अमाउंट ऑफ लाइकर मत भूला करें इस तरह के केसेस में, ऐसे पेशेंट ओलीगो में जाते हैं, ठीक है। सो वो भी आपके जहन में अमाउंट ऑफ हम्म। लाइकर भी होना चाहिए। जी, इसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई बात पूछनी है तो पूछिए। मैडम मैंने पूछना था, जैसे मैंने तो इसको डायरेक्ट सेक्शन का कहा ना, तो हमने वो दोनों इसकी ऑप्शंस का बताना होता है या कोई एक की तरफ ले जाना है देखिए, होता है? एक ऐसा पेशेंट जो APLS हो, रिकरेंट मिसकैरेजेस में हो, पहले उसकी प्री टर्म डिलीवरी हुई और उसमें हुई, आई हम्म। डोंट थिंक सो कि उसको ट्रायल ऑफ लेबर देना इज अ गुड डिसीजन, ठीक है। हम्म। क्योंकि इसको आप ठीक 39 ठीक। 40 तक तो नहीं ले जा सकते ना, इस हाँ जी। पेशेंट को, जी। ठीक है। और ये हम्म। अभी तो आप स्ट्रेट स्ट्रेट गई हैं, यूजली इस तरह के पेशेंट बिल्कुल जिस जिस इसमें आपका 25 और 34 पे अगर वो डिलीवर हुई है प्री क्लेम्शिया था, तो इसका 25% तो रिस्क है दोबारा से डेवलप करने का प्री क्लेम्शिया और PIH। हम्म। अगर इसकी प्रीवियस प्री टर्म डिलीवरी हुई है प्री क्लेम्शिया की वजह से और 34 वीक्स पे डिलीवरी हुई है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में इसका रिकरेंस 25% है, ठीक है। तो ठीक। वो डेफिनेटली कर हम्म। लेते हैं। तो आई डोंट थिंक सो इट इज अ सेफ डिसीजन कि आप उसको स्पॉन्टेनियस लेबर का वेट करें और 40 वीक्स तक ले जाएं, नो, हम्म। ठीक है। तो इट इज अ गुड डिसीजन रिपीट इलेक्टिव सिजेरियन, वो आपका डिसीजन इज गुड। उसको आपने जस्टिफाई ऐसे ही करना है कि क्यों दे रही हैं आप, ठीक है। ठीक। कि मैं उसको ठीक। स्पॉन्टेनियस का वेट नहीं कर सी, एज शी इज APLS, शी हैड अ रिकरेंट मिसकैरेजेस, शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ
preterm delivery and imminent preeclampsia, so I want to deliver her at 37, maximum 38 weeks if her blood pressure is controlled. So I will not offer her induction at 37 or 38 week if she is not going into spontaneous labor. ठीक है? So जी repeat elective cesarean is a good safe option. जी, किसी और को इस वाले ऑप्शन में कुछ और कहना है कि अगर हम इंड्यूस करें या ऑफर करें? आई डोंट थिंक सो कि इट इज अ गुड डिसीजन कि आप उसको कर सकते हैं, लेकिन फिर आप बहुत हाई रिस्क पे चले जाएंगे इंडक्शन में। आई डोंट थिंक सो। पेशेंट की चॉइस पूछ लें अगर आप पूछना चाहते हैं तो, अदरवाइज तो आई थिंक रिपीट इलेक्ट आपने ऑफर करनी है तो आप कर लें, बट इफ पेशेंट विश सो आई विल इंड्यूस विद द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन यूजली पेशेंट भी नहीं लेगी। हाँ, आई विल जी नॉट, आसिया भी इसकी तरफ है कि आई विल नॉट। तो यूजली हाउस भी यही कह रहा है कि हम नहीं करेंगे तो इसको नहीं करेंगे, ठीक है। मैडम मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ ना, तो बहुत रिस्की होता है, तो जो भी अगर अच्छा प्राइवेट में तो ऑब्स्टेट्रिशियन होगा बिल्कुल तो भी वो नहीं ना, बिल्कुल प्रैक्टिस में तो ये बिल्कुल चीज भी है ही आप नहीं रिस्क ना। नहीं लेंगे, क्योंकि जो पेशेंट के अटेंडेंट्स होते हैं वो कहते हैं डॉक्टर हमने तो आपके ऊपर छोड़ा था, फिर वो सारी बात जो होती है ना वो नो नो सर्जन के नो, ऊपर और डॉक्टर के ऊपर आ प्राइवेट जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ी और चीजें होती हैं, प्रैक्टिस में फिर आगे हाँ, काफी तो चीजें जो होती है ना। प्रैक्टिस में तो ओवर विजिलेंट आपको होना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं हमें तो हमारा बेबी हेल्दी बेबी चाहिए, बस हमें तो हाँ, हमें और हमारा वीबैक बच्चा चाहिए। वीबैक वीबैक इज इन प्राइवेट सेटअप्स और पेरी फ्रीज के अंदर प्राइवेट में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, ठीक है। तो इट इज फॉर एग्जाम पर्पस भी आपका इलेक्टिव इज सेफ ऑप्शन। चलें, नेक्स्ट हमारा कल का टॉपिक इंशाल्लाह है थायराइड था, आई थिंक, है ना? थायराइड है, ठीक है। थायराइड के दो केसेस होंगे, ठीक है। वो मैंने एक थर्सडे को रखा है, एक कल रखा है, ठीक है, ताकि इंटरमिंगल ना हो ये दो केसेस, ठीक है। ये भी मजे का है। आईटीपी टीटीपी तो नहीं होगा, थ्रम्बोसाइटोपिनिया का केस आपको देंगे वेंसडे को, ठीक है। और आईटीपी और टीटीपी मैंने आपको उसका भेज देती हूँ, थ्रम्बोसाइटोपिनिया का एक टॉग आर्टिकल है वो मैं भेज देती हूँ। बाकी ड्यूहर्ट्स उसमें ईबीएम के अंदर मैंने आपको कुछ दिन पहले भेजे थे स्क्रीनशॉट्स आईटीपी के और टीटीपी के, वो आप वहां से देख लीजिए। बाकी थ्रम्बोसाइटोपिनिया का मैं आपको एक टॉग आर्टिकल है वो करना है, और थ्रम्बोसाइटोपिनिया आपका स्ट्रक्चर डिस्कशन है पास्ट टॉक्स भी, ठीक है। सो इसको अच्छा प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलें, कोई इससे रिलेटेड क्वेरी हुई वो ग्रुप में आप पूछ लीजिएगा। बाकी ये गाइडलाइन पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट जो है ना, इसका जरूर पढ़िएगा, रिकरेंट वाला। वो जब आपने काउंसलिंग करनी है ना, और रिकरेंट मिसकैरेजेस की काउंसलिंग आपका पास टॉक है, ठीक है। रोल प्लेयर बैठा हुआ था, उसको उर्दू में सारी बातें समझानी थी। सो वो जो रिकरेंट का पेशेंट इंफॉर्मेशन का लीफलेट है ना, वो जरूर पढ़ना है आपने, ठीक है। उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। उर्दू में चलें वो आप बाद में खुद लिख लें, टाइम मिलता है तो लिख लें, अदरवाइज वही जो इंग्लिश के जुमले हैं वही आपने उर्दू में बोलने हैं उसको, ठीक है। सो ये दो आपने जरूर करनी है, कि ये वाली गाइडलाइन रिकरेंट मिसकैरेज की, और एक आपने रिकरेंट मिसकैरेज का पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, ठीक है। किसी भी टॉपिक के बारे में आपने काउंसलिंग करनी है तो उसके लिए ये पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स इज द बेस्ट वे, ठीक है। ये सबसे अच्छे वे है काउंसलिंग को करने का, ठीक है, सीखने का। जी, थायराइड का आप क्या कह रही हैं डॉक्टर आसिया? आसिया नेक्स्ट केस जो है वो क्या करना है? मैडम मैं, अगर आप मुझे दें तो मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, मैं प्रेजेंट करना चाह रही हूँ आपके जरूर पास। जरूर करें प्रेजेंट, कोई मसला नहीं, कल आप करें प्रेजेंट, ठीक है। हाइपो करूँ कि हाइपर करूँ? वो तो मैं डायग्नोसिस में बताऊंगी अभी पहले बता दूं, चलें। ओके ओके हाइपो मैडम, कर लें, आई विल प्रिपेयर बोथ, हाइपो मैं कर नहीं लें, दोनों ही करूँगी। हाइपो कर लें। ओके। अच्छा मैडम, और मुझे एक और बात कहनी थी कि मैं आपसे जो है ना, मैं आईयूजीआर की जो अभी रीसेंट गाइडलाइन आई है ना, जो न्यू गाइडलाइन आई है, वो मैं आपसे बहुत अच्छे से पढ़ना चाह रही हूँ। वो मैं आपको जब आईयूजीआर का टॉपिक आता है ना, तो उस दिन मैं करा दूंगी। वो है एक्चुअली ये 2 सफ़े ही करने हैं बस, ठीक है। और जिस दिन आईयूजीआर हाँ का लेकिन टॉपिक उसमें होगा,
उसका जो वो चार्ट है ना वो घुमा देता है, उसमें बंदा वो भूल आप जाता है जब तक कि डोंट कोई। वरी, वो मैं आपको ऐसे कराऊंगी, आपको पानी की तरह याद हो जाएगा। और जिस दिन IUGR का टॉपिक होगा उस दिन मैंने सोचा मैं आपको ये दो चार्ट उसी दिन वहां बैठे बैठे याद करवा के उठाऊंगी। ठीक है। ओके मैडम। हाँ ओके। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक थैंक यू।